In case the buyer and seller, in case the buyer and seller agrees to revise the price, which have revised the price of sales, which have already happened, comma, then the revenue attributed to the price revision, should be adjusted, slash recorded when, next line, sub point 1, the price revision is agreed, slash effective, and sub point 2, there is reasonable assurance, that the price revision would be collected. And there is reasonable assurance that the price revision would be collected. Full stop. Next line. We should not adjust. Same next line में लिखो अलग से. We should not adjust the sales already recorded. Next, point number 9. Point number 8. Property sales transactions. Underline next line. In case of builders, slash real estate developers, comma, sale of flats, slash building is considered to be revenue. Next line में लिखो. In case the legal registration of the sales document is pending, then the property does not get registered. In the name of the buyer.
does not get registered in the name the buyer. Full stop. Next line. But in substance, comma, underline the word as substance, comma, when the risk and reward is transferred to the buyer, then the sale should be recorded. On the basis of substance over form. Underline the word substance over form. Next line. The sale can be recorded. When the following conditions are met. The sale can be recorded when the following conditions are met. Even when the legal registration is not completed. Colon, next line, sub point 1, there is a written sales deed. Underline the word written sales deed. And sub point 2, the consideration is received. Or agreed to be received. Underline the word consideration, underline the word received, underline the word agreed. And third point, sub point 3, the buyer has taken the possession of the property. The buyer has taken the possession of the property. Clear on it? Or no? अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रोपोजिशन थोड़ी दिया आपने है ना, A7 में आएगा. A7 इज ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा तो कैसे करना है तब बात करेंगे. आर वी क्लियर ऑन इट? चलो फाइन. अदर देन A7 all the revenue transactions are considered here. Done, finished? Okay, so that finishes that. We'll come to the problem section. Problems में आ जाइए. Let's see how well you think. Problems ready? एक मिनट मिलेगा सोचने के लिए एंड जवाब देना है. स्टार्ट करें. लेट्स सी हु इज
Ready with the answers? Perfect provision चाहिए. The board of directors, मिला question, that is page number 283. Page 283. The board of directors decided on 31st March to increase the sale price of certain items retrospectively from 1st January. Retrospectively मतलब backwards, पीछे. 31st मार्च को डिसाइड कर रहे हैं. कब से रिवाइज करेंगे? 1st जनवरी, मतलब 3 महीने पहले जाके रिवाइज करेंगे. रिट्रोस्पेक्टिव इज पीछे. वो गाना सुनता, रेट्रो 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 गाना किसको बोलते हैं? रेट्रो, पुराना. हाँ, पीछे जाके रिवाइज करेगा. क्या हो गया? मेट्रो नहीं, ए भाई, मैं रेट्रो, RETRO, रेट्रो. हाँ. इन व्यू ऑफ दिस प्राइस रिवीजन with effect from 1st January 17, the company has to receive 15 lakh रुपया from its customer in respect of sales made from 1st January to 31st March. तो 1st जनवरी से अगर हम प्राइस रिवाइज करेंगे तो हमारा 15 लाख रुपया लेने का बनेगा. किससे? कस्टमर से. अकाउंटेंट कैनॉट मेक अप हिज माइंड whether to include 15 lakh in the sales of 16-17. एडवाइस. अकाउंटेंट बोलता मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है, मुझे ये 15 लाख रुपए को सेल्स में डालू कि नहीं, मैं कंफ्यूज्ड हूं. तो आप एक्सपर्ट हैं तो आपके पास आया है भाई. हाँ, यू एज एन एक्सपर्ट हैज टू टेक डिसीजन इन 1 मिनट्स टाइम. प्रोविजन के साथ. हाँ भाई, ओपन बुक ही है. पढ़ के नहीं आया तो क्या करेंगे? ओपन बुक ही रखना पड़ेगा ना. हाँ, 1 मिनट के बाद प्रोविजन के साथ जवाब देने का. टेक्स्ट बुक से आंसर नहीं देखना है अपने को, बस. अप्लाई करने को आना चाहिए कॉन्सेप्ट. परीक्षा में जैसा लिखेगा वैसा चाहिए मुझे. तो आप हाँ ना बोल के खत्म नहीं करना है. चलो टाइम आउट, टाइम आउट. चलो भाई, रो में पूछते हैं भाई, इधर कोई रेडी जवाब देने को? हो गया, 1 मिनट हो गया, वापस थोड़ी रुकेगा. जैसा परीक्षा में लिखेगा वैसा बोलने का है. जिसको भी टर्न नहीं मिला है बोलो. चले लो, बलदाम नहीं बोलेगा. यहां चलते हैं. एनीबडी? ओपन बुक में जवाब नहीं दे रहे और आप बोलते हैं मैं परीक्षा बंद बुक में लिखेगा. कॉमेडी हो गया ना ये. कितना यूनिटी है देखो. यूनिटी में रॉन्ग रॉन्ग चीज में यूनिटी आता है. हाँ, चलो सूरज भाई सिंह. हाँ हाँ, सुनो, अभी आंसर बराबर बोल रहा है कि उसका भी जवाब दो.
सुन लिया आप लोग ने? वेरी गुड। किसको ऐड लेस करना है? प्लस माइनस? रोज में हाँ ना बोलेगा तो बंटवारा होएगा। तो जब प्लस माइनस कर दो। हाँ ओके, शी सेइंग आई विल राइट फ्रेश एंट्री फॉर सेल शुड बी डन। वो बोल रहे हैं 17-18 में करेगा मैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो वो तो एकदम ही फिर अलग आंसर हो गया। और किसको क्या प्लस माइनस करना है उसके बाद जवाब देंगे हम। बस अरे अभी बोल दिया तो सबको अपना अपना मन में क्या था वो मालूम पड़ेगा ना भाई। हाँ वो बोल रहा है मेरे पास कुछ प्लस माइनस है। हाँ सुनिए प्लीज। ओके वो बोल रहा है ऐसा लिखना चाहिए सर 16-17 में करो, प्रोवाइडेड देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट इट विल बी कलेक्टेड। और किसको कुछ प्लस माइनस करना है? या वेरी इंपॉर्टेंट, काम बोला है देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट इट विल बी कलेक्टेड, बोला ही नहीं है बराबर ना? हाँ तो यू दे आर एज्यूमिंग, यू टू से दे आर एज्यूमिंग, यू आर दे आर ऑल्सो एज्यूमिंग, यू आर ऑल्सो एज्यूमिंग, then they'll say assume marks are there, so that is not possible, so you have to make it explicit। तो आपको बोलना पड़ेगा ना, उसलिए तो मैं पूछ रहा हूं प्लस माइनस क्या करना है आपको। तो सबसे पहला बात, from it is effective, from the date it is effective, where is the date effective from? 1st January। तो डेट इफेक्टिवनेस तो क्लियर है, तो क्लैरिटी क्या नहीं है कि वे 15 लाख मिलेगा कि नहीं, 15 लाख मिलेगा कि नहीं वो मालूम नहीं, बोला नहीं। तो अगर आपको 15 लाख मिलेगा ऐसा कॉन्फिडेंस है, देन यू कैन रिकॉर्ड इन 16-17। उनका आंसर में ईयर वॉज मिसिंग 16-17। यू टू ऑब्जर्व, वही तो बोल रहा हूं, क्या बोल रहे सुनिए। सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन 16-17 provided the company is confident that it can collect this 15 lakhs. That's number one. Number two, he said for the sale on 1st January, it is not sale on 1st January, it is sale from 1st January to 31st March। वो एक दिन का सेल का प्राइस नहीं बढ़ा रहा है, 1st जनवरी से 31st मार्च का सेल्स का प्राइस बढ़ा रहा है। सुन रहे? दैट्स अ मेन हाईलाइट पॉइंट्स। तो वैसा मुझे ऑब्जर्वेशन चाहिए, बाकी लोग ऐसा बैठ के हाँ चलो एक बकरा मिल गया अभी वांदा नहीं, अभी अपना टर्न चला गया, वैसा थोड़ी सोचने का है। आई वांट अलर्टनेस। मैंने बोला है कम से कम एक्टिंग करो, ऐसा एकदम एंटीना खड़ा ऐसा सुन रहे अपन। हाँ चलो एकदम सुन रहे। हाँ वो एंटीना ऐसा है कि नहीं मुझे पता चलेगा। हो हाँ जिसको एक्टिंग करने का ऐसा रखने का फिर। हाँ नहीं तो अदरवाइज जो लोग ईमानदारी से सोच रहे हैं बढ़िया है। आई वांट यू टू रीड इट अप। As per AS9, revenue on account of retrospective price revision should be recorded when the price revision is effective. Condition number 1. ऐसा जोकने वाला चाहिए। हाँ अपना कंडीशन 1 मैंने बोला है, मैंने भले ही उसको आपको लगेगा सिंपल भाषा है, बट मैंने उसको डाइल्यूट नहीं किया है। आपको सेम वर्ड्स मिलेंगे, कॉमा क्या, as long as there is reasonable assurance that the price revision would be collected। ये अपना कंडीशन नंबर 2, ये हो गया प्रोविजन। अब क्या लिखा है, इन दिस केस द प्राइस रिविजन हैज बीन डिसाइडेड इन 16-17, hence the revenue should be recorded in 16-17 for 15 lakhs in the case the entity is reasonably certain that it will be able to collect the price from its। कितना स्मार्टली लिख दिया, इन केस तुमको भरोसा है, मतलब क्योंकि क्वेश्चन, हाँ ये पहचानने को आना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहा है, वो आपको रिकॉग्नाइज करने को आना चाहिए। अरे ये दोनों में से एक पूरा हो रहा है एक नहीं हो रहा है। हेलो, दैट इज एप्लीकेशन प्रॉपर। हाँ चलो अगले में चले जाते हैं, नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 2, हाँ उधर एक डाउट है, हाँ सेकेंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा भी नहीं बोला है, ऐसा बोला है क्या वी आर नॉट श्योर? नहीं, दे आर नॉट सेइंग वी आर नॉट श्योर, नॉट दे आर सेइंग वी आर श्योर. हाउ विल यू आंसर? इफ यू आर श्योर डू इट, एंड दैट इज अंडरस्टूड. नॉट श्योर डोंट डू. व्हाई शुड वी से? समझ में आ रहा है? वो लोग ने नहीं बोला है कि हम श्योर है कि नहीं है, तो हम बोले तू श्योर है कर दे. समझ में आ रहा है? हाँ चलो और बोलिए. हाँ हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया, मालूम पड़ा आपका जो बायर्स है वो लार्जर स्केल में, जहां पर एक बायर नहीं है बहुत सारा बायर लोग है, तो हमने उनको नोटिस भेज दिया कि 1 जनवरी का प्राइस इतना बढ़ा रहा है. नहीं, उसलिए तो कलेक्टेबिलिटी के बारे में नहीं बोला है ना. वो एक नहीं है 10-12 लोग है, इसलिए बोल नहीं रहे हो कि मिलेगा कि नहीं. तो हम बोल रहे हैं मिलेगा तो कर दे. ठीक है चलो नेक्स्ट. हाँ किसको डाउट है बोलो. डाउट डाउट डाउट. काउंटर क्लोज. चलो सेकेंड क्वेश्चन. वाई लिमिटेड used certain resources of X Limited. In return, X Limited received 10 lakh, 15 lakhs as interest and royalty respectively from Y Limited for the year 16-17. You are required to state whether and on what basis this revenue can be recognized by X Limited. हाँ अभी इसके लिए 30 सेकेंड्स मिलेगा. कम दिमाग का काम है तो 30 सेकेंड्स. जैसा परीक्षा में लिखेगा वैसा चाहिए. बोलिए. जिसको भी टर्न नहीं मिला है पहला चांस. हाँ चलो, ही सेइंग द आंसर. सुनिए प्लीज क्या बोल रहे हैं, कैसा लिखने वाले हैं परीक्षा में. इज इट राइट? फाइन. थोड़ा एप्लीकेशन बराबर मिक्स मत करो, थोड़ा सा वर्ड आगे पीछे मत करो. बी वेरी स्पेसिफिक. एप्लीकेशन करते वक्त कंबाइन अप्लाई मत करो, इंडिविजुअल करो, बिकॉज एक इंटरेस्ट है और दूसरा रॉयल्टी है. तो आपने प्रोविजन तो बराबर बोल दिया. अप्लाई करते वक्त क्लैरिटी रखिए. क्या बोलेंगे? इन केस ऑफ interest of rupees 10 lakh received by X Limited, it will be recorded in 16-17 on the accrual basis in proportion to the time. Are you clear on it? एकदम उसका प्रोविजन अलग. फिर for royalty of rupees 15 lakhs received in 16-17, this will also be recorded on accrual basis as per the terms of the contract. Simple. Are we communicating? सुन रहे हैं आप? एक बार रीड करते हैं. हम रीड करते हैं पहले आप, सुधर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ऐसे ही लिखा है परीक्षा में, और हम लोग उससे बेटर ही सोच रहे हैं. क्या लिखा है देखो. एज पर AS9, revenue on account of interest should be recognized on time basis
दैट इज एज एंड व्हेन इंटरेस्ट, सेम वर्ड है देखो, एक्रूअल टाइम बेसिस. फर्दर, revenue on account of royalty should be recorded as per the terms of the contract. Second part, in the given case, X Limited can interest income of 10 lakhs in case it is accrued during the year and royalty of 15 lakhs as per the terms of the agreement. हम तो उससे बेटर ही लिख रहे हैं, on accrual basis as per the terms of the contract. Clear? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ऐसा एकदम परफेक्ट लगाओ तो मजा आएगा आपको, तो ही पढ़ने का मजा आएगा, नहीं तो पढ़ने का मजा नहीं आएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 4 में चले जाइए. 3 बाद में करेंगे हम, 4th में चले जाइए. क्वेश्चन नंबर 4. चलो क्या दिया देखो. अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल in the manufacturing of fine paper rolls. क्या दिया है? 15th January रॉ मटेरियल 1 लाख रुपया, NRV 80,000. 20 जनवरी को पल्प बना, WIP1 1,20,000, NRV भी दी है. 27 जनवरी को रफ एंड थिक पेपर बना, ये WIP2 है. 15 फरवरी को फाइन पेपर रोल बन गया. 20 फरवरी को रेडी फॉर सेल हो गया. 15 मार्च को सेल एग्री हो गया, इनवॉइस भी रेज कर दिया. 2 अप्रैल को डिलीवरी मिला, डिलीवरी कर दिया और पेमेंट भी मिल गया. एक्सप्लेन द स्टेज ऑन विच यू थिंक रेवेन्यू विल बी जनरेटेड and calculate how much net profit for the year ended 31st March 16 on this product as per AS9. As per AS9. बोलिए, 1 मिनट का टाइम है. कब सेल थी, कितना क्वेश्चन है मालूम है ना? 2 क्वेश्चन है. एक, कब रिकॉग्नाइज करना है, और वो साल का प्रॉफिट क्या होएगा. चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, और जो लोग को टर्न नहीं मिला, लेट्स सी हु इज रेडी फॉर दिस. ओपन बुक है भाई, सिंपल ओपन बुक. एक मिनट हो गया. ओके, बोलिए, हु इज आंसरिंग. आई एम वेटिंग. हाँ चलो, शी इज सेइंग आई विल टेल. सुनिए प्लीज.
सुना आपने? ये बोल रहे हैं 15 मार्च, शी सेइंग 15 मार्च को सेल रिकॉग्नाइज करो। क्यों 15 मार्च को सेल रिकॉग्नाइज करो? सेल इज एग्रीड एंड इनवॉइस इज रेस्ड। ऊपर 20 फरवरी को रेडी हुआ है सेल के लिए, लेकिन माल बिका नहीं। माल बिका नहीं है तो रिकॉर्ड कैसे करेगा? तो सेल कभी हुआ और इनवॉइस कभी रेज हुआ? 15 मार्च। तो शी सेट द प्रोविजन फॉर सेल ऑफ गुड्स when the risk and reward associated to ownership of the goods is transferred and there is reasonable assurity that the consideration will be collected. Perfect. तो शी सेइंग 15 मार्च को माल बिक भी गया और इनवॉइस भी रेज हो गया, तो आप वो डेट को पकड़ लो, डेट ऑफ सेल। एंड जहां तक सेकेंड पार्ट, शी सेइंग प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए शी सेइंग सेलिंग प्राइस दैट इज एनआरबी 3.5 लाख का है और उसका करेस्पॉन्डिंग कॉस्ट वो दिन तक 2 लाख रुपया है, तो शी सेइंग 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट भी रिकॉग्नाइज करना है। हाँ ना? एनी अदर प्लस माइनस? क्लियर नॉट क्लियर? चलो बढ़िया है, देख लो एक बार, कम ऑन, क्या लिखा है? एज पर AS9, पढ़ने का, बार बार रीड करने का, बिकॉज आई वांट मेनी पीपल टू आंसर दैट। क्या लिखा है? एज पर AS9 द रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड, रिस्क एंड रिवॉर्ड goods are transferred. This is generally the date when the sale happens and not necessarily the date when the production is completed. Therefore, the revenue should be recorded on 15th March 2016. That is when the sale is agreed and the invoice is raised. The revenue 3,50,000 and the corresponding cost of the goods is 2 lakhs. Hence the net profit for 15-16 would be 3,50,000 minus 2 lakhs is equal to 1,50,000. Perfect? बढ़िया है, चलो गुड गुड अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। चलो 5 देखते हैं, लेट्स सी हु इज आंसरिंग दैट। क्या लिखा है देखो, फैशन लिमिटेड is engaged in manufacturing of ready-made garments. They provide you the following information on 31st March 2017. करना क्या है? लास्ट लाइन, you are required to advise the accountant of Fashion Limited the amount to be recognized as revenue in the above cases in context of the AS. मतलब कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहला केस, on 15 January 17, garment of 4 lakhs were sent to Anand on consignment basis, of which 25% garment unsold lying with Anand as on 31st March 2017. एक एक करेंगे हम, लेट्स सी। एक फर्स्ट वाला हम कर रहे, फर्स्ट वाला कर रहे, 1 मिनट का टाइम है प्रोविजन के साथ जवाब देने का भाई। जिसको भी टर्न नहीं मिला है तैयारी करो। बोलिए एनीबडी? तो सब क्वेश्चन 1 पूछ रहा हूं, 3 थोड़ी पूछ रहे हैं। हाँ चलो, शी इज सेइंग आई विल आंसर, सुनिए प्लीज। प्रोविजन बराबर है? परफेक्ट।
He's saying 4 lakhs में से 25% माइनस कर दो तो 3 लाख रुपए का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का है. Is it right? Perfect. तो अगला नेक्स्ट अगला तैयारी. गारमेंट वर्थ 1,95,000 were sold to Shine Boutique on 25th March 17, but at the request of Shine Boutique these were delivered on 15th April. Any one of you? आपको तो टर्न मिल गया है, जिसको भी टर्न नहीं मिला है उनसे पूछना है मुझे. जिसको टर्न नहीं मिला वो लोग इतना धर्म संकट में है या उनको लग रहा है पैसा देगा तो बोलेगा ऐसा. हाँ चलो. ई सेइंग आई विल टेल. सुनिए प्लीज. As the goods were held on the request of the buyer, the entire sale should be recognized. तो कितने का सेल रिकॉग्नाइज करेंगे? 1,95,000. बराबर है. लास्ट केस. On 1st November 16, garment of 2,50,000 were sold on approval basis. The period of approval was 4 months. After which they will be considered as sold. Buyer sent approval for 75% of goods on 31st December. No approval or disapproval received for the remaining goods till 31st March. 1 minute's time. जिसको भी टर्न नहीं मिला है. ओके, टाइम आउट. कौन आंसर कर रहा है? अरे मुझे तो लगा पहला पहला करेंगे आप यार. भाई स्टैम्प आने दो, बाद में पैसा मिलेगा. हाँ चलो. ई सेइंग आई विल टेल. Is it right? Yes. Only one addition. The lapse is on 1st February. Sorry, 1st March. 1st March को लैप्स हो गया ना. 1st नवंबर को चालू हुआ. 1st दिसंबर 1 महीना होएगा. 1st जनवरी को 2 महीना होएगा.
1 फरवरी को 3 महीना होएगा, 1 मार्च को 4 महीना पूरा हो जाएगा, तो तुम 1 मार्च तक जवाब नहीं देगा, उसके बाद हम क्या समझ के चलेगा, पूरा का पूरा सेल है, और हम 31 मार्च को गिनती कर रहे हैं, तो 1 मार्च को तो डेट खत्म हो गया, तो बाकी का 25% भी सेल करके कंसिडर हो जाएगा। मतलब आपका सेल कितना कंसिडर होगा ये ट्रांजैक्शन में, 2,50,000। एग्री? और कुछ, एनीथिंग एल्स टू बी डन इन द क्वेश्चन? तीनों को ऐड करना पड़ेगा, गुड गर्ल, तीनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा। क्यों तीनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा? क्या बोला है? द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द अबव केसेस। ये पीरियड के लिए कितना रेवेन्यू हो गया, तो आपको तीनों ऐड करना पड़ेगा। तो हर एक का भी लिखना है, टोटल भी लिखना है, तो ऐसा करना पड़ेगा आपको, 3 लाख प्लस 195 प्लस 250। आर वी क्लियर ऑन इट? तो टोटल 7,45,000 का सेल करके लिखना पड़ेगा आपको। ये बहुत जन मिस कर देते हैं, दैट्स व्हाई स्पेसिफिकली आस्क्ड। बहुत जन को लगेगा बस मेरा काम खत्म हो गया, काम खत्म नहीं हुआ, वो बोल रहा है ये पूरा का रेवेन्यू कितना हो गया, तो आपको तीनों का टोटल करना पड़ेगा। क्लैरिटी? हेलो, जम रहा है क्या एप्लीकेशन कि मिस्टेक हो रहा है? नहीं जम रहा है, चलो फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, let's see who's answering next. Raj Limited entered into an agreement with Hina Limited to dispatch goods valuing rupees 5 lakhs every month for the next 6 months. On the receipt of entire payment, Hina Limited accordingly made the entire payment of 30 lakhs. कैसा है 30 lakhs? 5 lakhs into 6 महीना. And Raj Limited started dispatching the goods. In the 4th month, due to fire in the premises of Hina Limited requested Raj not to dispatch the goods worth rupees 15 lakh. क्यों 15 लाख? क्यों 15 लाख कहां से आ गया? कौन सा महीने का डिलीवरी हो गया? फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, अब कौन सा बाकी है? 4th, 5th, 6th, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो हमने फर्स्ट का दे दिया, सेकेंड का दे दिया, थर्ड का दे दिया, 4th, 5th और 6th का वो बोल रहा है कि डिलीवरी तुम मत करो क्योंकि उसके इधर आग लग गया है। Raj Limited accounted 15 lakhs as sales and transferred the balance to advance received against sales. Comment on the above treatment by Raj Limited with reference to the provision of AS9. क्वेश्चन समझा ना आपको? आपने पैसा ले लिया कि नहीं लिया? हाँ, आप बोला एडवांस ला भाई, मालूम पड़ा आप एल जैसा कंपनी है, माल डिलीवरी करने से पहले क्या मांग रहे हैं? बोला पैसा पहला दे दे भाई, तो उसने कितने महीने का पैसा दे दिया? 5 लाख 6 महीना 30 लाख रुपया दे दिया, और डिलीवरी कैसा करेगा? 5-5 लाख रुपए का हर महीना करेगा। 3 महीने का कर दिया, 4th महीने में तुम बोल रहे नहीं मेरे को नहीं चाहिए, रुक जाओ। राज बोल रहा ठीक है रुक गया मैं, तो उसने 15 लाख को किधर ट्रांसफर कर दिया? एडवांस। बोले माल डिलीवरी नहीं किया बिकॉज कस्टमर ने ना बोल दिया, तो बोलते एडवांस अगेन सेल्स में डाल दिया। हिना ने रिक्वेस्ट किया, राज ने मान लिया। हिना रिक्वेस्टेड, Raj agreed, and Raj is saying no problem, I will deliver from the afterwards whenever you want. चलो इनको तो टर्न मिल गया, और कोई है तो बोलो। आपको भी टर्न मिल गया है, 1 मिनट होने दो, देन विल सी इफ
ओके, so anybody, anyone? हाँ चलो, he is saying sir I will apply the provision. सुनिए प्लीज. Is it right? और कुछ प्लस माइनस? हाँ ये बोल रहा है प्लस माइनस में. मतलब हिना हैज नॉट रिक्वेस्ट. हाँ तो वो बोला नहीं बोला. गवर्नमेंट बोलता वो बोला नहीं बोला, तेरे को क्या करना चाहिए? ऐसा है. हिना ने बोला सामान मत दो, तो आप क्या करोगे? दैट इज अ क्वेश्चन. हाँ तो नहीं भेज रहे हैं हम. तो ही सेइंग उसको सेल कंसीडर करना चाहिए. नहीं नहीं, 4th मंथ का जब डिलीवरी करने वाले थे, शी सेइंग डोंट डिलीवर. आगे का 3 महीने का पेंडिंग रख. 15 लाख बोला है ना. वो बोला रिक्वेस्टेड राज नॉट टू डिस्पैच गुड्स वर्थ 15 लाख रेडी फॉर डिस्पैच. तो 15 लाख का डिलीवरी रोक रही हो. तो ऑब्वियसली शी इज नॉट से शी इज सेइंग ना नहीं चाहिए मुझे. हाँ आपको कुछ प्लस माइनस करना है. हाँ सुनिए प्लीज, इनको प्लस माइनस कर. नहीं, आप उसका आंसर में क्या प्लस माइनस करने वाले वो बता दो. कौन सा लाइन आपको एक्स्ट्रा बोलना है? व्हाट अबव व्हाट ही सेड. वो तो उसने बोल दिया. हाँ अच्छा, पेमेंट इज रिसीव्ड, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, शी सेइंग पेमेंट इज रिसीव्ड, वो इंपॉर्टेंट है. हाँ इनको कुछ ऐड करना है. नहीं, दे आर वेरी क्लियर कि 15 लाख का, शी सेइंग 15 लाख का जो माल रेडी है मत भेजो. शी इज नॉट सेइंग 4th महीने का मत दे. शी सेइंग 4th 5th 6th. लिखा है ना, नॉट टू डिस्पैच गुड्स वर्थ 15 लाख. 15 लाख इस 3 महीने का माल मत भेज. इसे लिखा ना 1 2 3 कर दिया, 4 5 6 बाकी है. वो बोले 4 5 6 का मत कर अभी. उसको लग रहा है आग लग गया है, कम से कम 4-5 महीना लगेगा मेरे को ठीक होने को. हाँ उनको कुछ प्लस माइनस करना है. 1 मिनट सुनने दो. प्लस सिर्फ प्लस माइनस का बात कर रहे हैं हम. हाँ दैट्स व्हाट ही सेड. मैं पूछ रहा हूं प्लस माइनस में क्या करना है. वो तो उसने बोला. हाँ
Okay, fine. Anyway, important addition, important एक लाइन उसने बराबर ऐड किया कि the treatment done by Raj Limited is wrong. Which treatment done by Raj Limited is wrong? वो एडवांस रिसीव्ड अगेन सेल्स में डाल रहे हैं, जो गलत है वो आपको बोलना पड़ेगा. बाकी वॉट एवर ही सेड इज राइट. देयर इज नो रॉन्ग इन प्रोविजंस एंड पेमेंट इज नॉट कंपल्सरी. वो अपना प्रोविजन देखोगे, कहां बोला है पेमेंट चाहिए. हम इतना हर बार क्या बोल रहे हैं, रीजनेबल एश्योरेंस दैट द पेमेंट विल बी रिसीव्ड. हम ऐसा नहीं बोला पैसा ला, एश्योरेंस है बस हो गया. आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, तो क्लैरिटी रखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा नहीं तो इसलिए यहां पर लिखा देखो, ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है. ट्रीटमेंट डन बाय राज लिमिटेड ऑफ ट्रांसफरिंग एडवांस रिसीव्ड अगेन सेल इज इनकरेक्ट. नहीं तो ये हम मिस कर देते हैं बहुत बार. हम अपना आंसर में इतना हैप्पी रहते हैं तो कंक्लूड करने को तकलीफ हो जाता है. हाँ, इनको कुछ प्लस माइनस करना है. हाँ, वही तो गलत है ना. पूरा का पूरा ये सेइंग पूरा का पूरा 30 लाख सेल करके ट्रीट हो जाएगा. हाँ, कर दिया रहेगा. यस यस, नो प्रॉब्लम. तो ये सेइंग पूरा का पूरा ही सेल ट्रीट करो. अभी उसमें से 15 कर दिया है, 15 अभी एडवांस में ट्रांसफर किया है, तो द एंटायर 30 सेल. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. चलेगा ना. यू से दिस एडवांस वॉट एवर दे हैव ट्रांसफर टू एडवांस दैट शुड बी ट्रीटेड एज सेल बोलो तो भी चलेगा. इट्स वन एंड द सेम. आर वी क्लियर? डन? फाइन. बुलाए नहीं, घर वाला ढूंढता रहेगा. चलो फाइन, नो प्रॉब्लम. वो आप लोग कार्ड पंच नहीं करते तो एब्सेंट का मैसेज चला जाता है, तो उनको लगता है यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है, गया कहां. तो लगा इन ट्रांजिट में किधर है ये. बराबर है. चलो फाइन. ओके, डन. क्लियर ऑन इट? किसी को डाउट? नथिंग. फाइन. नेक्स्ट, illustration 7. Indicate in each of the cases whether revenue can be recognized and when it will be recognized as per AS9. तो 5 क्वेश्चन है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है. विल आस्क वन बाय वन. 2 मिनट स्टार्ट्स नाउ. खुद ही रीड कर लो एंड जिसको टर्न नहीं मिला रेडी रहो. ऐसा बहुत लोग एकदम आराम कर रहे हैं, बोला मैं जवाब ही नहीं देगा, खुद भी करो तुम.
ओके चलो टाइम आउट. एनीबडी? एनीवन आंसरिंग? हाँ चलो. ही सेइंग सर आई विल स्टार्ट. सुनिए प्लीज. नहीं सीधा आंसर ही लिखना है अपने को. ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम डिस्काउंट रिसीव्ड. ये बोलता है नॉट पार्ट ऑफ रेवेन्यू. It is to be reduced from the selling price and net selling price will be recorded. बराबर जवाब दिया. बराबर है. परफेक्ट वर्ड्स. हाँ नहीं बर. ये बोल रहे हैं टू बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू बिकॉज इट इज सोल्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटर. थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है. क्या लिखा है? सोल्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स और अदर्स फॉर रीसेल. नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा है मतलब एक्चुअली वो सेल है ही नहीं. इट इज अ टाइप ऑफ कंसाइनमेंट. इट्स अ टाइप ऑफ कंसाइनमेंट. आप बोलेगा सर सोल्ड वर्ड है, बट क्या वर्ड है? सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर और अदर फॉर. हाँ मतलब उसको बोले तू सामने बेच के आ. तू सामने बेच के आ. जैसा अभी ये क्या बोल रहे हैं, एक जैसा ये फूड पैकेट्स वगैरह है, ब्रेड है या बिस्किट्स है एंड ऑल, तो वो लोग सामान लाके देते हैं छोटा छोटा वेंडर्स को. तो क्या कंडीशन पे लाके देते हैं? जो ब्रेड नहीं बिका वो लेके जाएगा और आपको क्रेडिट मिलेगा उसका. बराबर है. वो आप जो बोल रहे हैं इट इज एग्रीएबल. आपको डाउट आ सकता है, बट वो बोल रहे हैं आप लार्जर पिक्चर देखिए. मैं आपको क्यों बेच रहा हूं? आगे बेचने के लिए दे रहा हूं. हाँ तो मैं आपको क्यों बेच रहा हूं? आगे बेचने के लिए दे रहा हूं. एक मिनट सुनो. एक मिनट. अगर हम एकदम क्या बोल रहे हैं, एकदम माइक्रो लेवल पे सोच रहे तो डाउट है, बट थोड़ा लार्जर लेवल पे देख रहे तो वो लोग गलत नहीं है. देखो जहां वो गलत होंगे मैं बोलूंगा गलत हो गए, बट यहां पर वो लोग गलत नहीं है. क्यों गलत नहीं है? बिकॉज ये बोल रहा है आई हैव सोल्ड इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर और अदर्स फॉर रीसेल. मतलब आई नो दैट दे आर गोइंग टू सेल इट टू समबडी एल्स, सो दे आर डूइंग मी अ फेवर. एक मिनट. डिस्ट्रीब्यूटर को हम क्या दे रहे हैं? हाँ बोलो. कमीशन. हम डिस्ट्रीब्यूटर को क्या देंगे? कमीशन देंगे. तो इतना माल बेच, इस पे इतना कमीशन मिलेगा. तो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिल रहा है इसलिए वो माल बेच रहा है. तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिल रहा है, माल बेच रहा है, तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज सेल. Got the point? Clear or no? अच्छा. और the company will be treating it as what? The company will be treating it as sent on sale on approval basis. ये अप्रूवल बेसिस का टाइप होगा. अप्रूवल बेसिस मतलब तेरा आगे बिक गया तो हम सेल कंसिडर करेंगे, नहीं बिका तो वापस दे दे, हम तेरे को नया माल ला के देंगे. दैट इज द होल पर्सपेक्टिव ऑफ इट. क्लियर है? हाँ इनको एक डाउट है? हाँ बट वो ऐसा कंडीशन में है कि वो हमको खराब हो गया माल या नहीं बिका तो हम उसको वापस ले लेंगे. तो मतलब विल यू ट्रीट इट एज सेल्स? नो, यू विल ट्रीट इट एज सेल ऑन अप्रूवल. आइदर आई ट्रीट इट एज सेल ऑन अप्रूवल और आई ट्रीट इट एज कंसाइनमेंट. नहीं तो एक मिनट आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचा और उसका माल नहीं बिका, आप समझ, ब्रेड का पैकेट है, नहीं बिका तो वापस दे रहा है. तो वापस दे रहा है तो अगर मैंने उसको सेल ट्रीट किया रहेगा तो वापस देगा तो क्या करेगा? सेल को रिवर्स करेगा.
सेल को रिवर्स करना अलाउड है ही नहीं। सुन रहे हैं आप? तो कंपनी के लिए कम कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट और अप्रूवल बेसिस। नहीं तो क्या हो गया, मालूम पड़ा हमने सेल कर दिया, उस पर जीएसटी भरा, वापस माल आएगा तो रिवर्स जीएसटी जाके क्लेम करना पड़ेगा। बेचा कुछ नहीं और रिवर्स क्लेम करने का पैसा भरो, तो कंपनी सेफ क्या खेलेगा? कंसाइनमेंट, अप्रूवल, जब तक नहीं हुआ तब तक नहीं करेगा। नहीं, मेनी विल गेट मिसलेड, आई एम नॉट सेइंग आप सोच रहे वो गलत है, बट आपको थोड़ा और होलिस्टिकली सोचना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? हाँ हाँ, तो वही बोला, सेल रिटर्न ट्रीट करेगा तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा ना, उसने मालूम पड़ा जीएसटी भर दिया उसके ऊपर, वापस रिवर्स करना पड़ेगा जीएसटी, तो उसका खर्चा लगता है, फ्री में नहीं होता है वो। हाँ, डन। चलो नेक्स्ट पर्सन। हाँ, ये बोलता है इट इज अ केस ऑफ सेल एंड रीपर्चेज। तो सेल देंगे तो क्या, सेल करेंगे तो क्या बोलेंगे? लोन टेकन, रीपर्चेज विल बी रीपेमेंट ऑफ लोन। नेक्स्ट। So will it be recognized as revenue? Yes, the commission will be recognized as revenue when on the date the policy becomes effective. Next. It is a case of request from buyer to delay the delivery. तो पूरा 50,000 का क्या करेंगे हम? सेल ट्रीट करेंगे। आर वी क्लियर ऑन इट? चलो परफेक्ट, क्लियर हो लिया, समझ में आ रहा है सबको? चलो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 8, एट वन। चलो आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम। एट वन या चलो 3 minutes टाइम। लास्ट का एनी वन ऑफ यू, अभी मैं कुछ रीड नहीं करने वाला हूं, मैं रीड भी नहीं करूंगा, 3 मिनट का टाइम है। आई रैंडमली आस्क, तभी बोलो मत मेरा पूरा नहीं हुआ है। हाँ, उधर एक डाउट है कुछ, विराज कंपनी बोलो। हाँ बराबर है, मैं किधर ना बोल रहे हैं। नहीं मिलेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर पैसा नहीं देगा। कैसा पैसा देगा वो? माल ही नहीं बिका है। हाँ बोला 3 महीने का उधर ही है, माल बिकेगा पैसा देगा। हाँ
Okay, so enough of time done. So let's start asking. यहाँ से बोलिए कॉर्नर बॉय. हाँ हाँ सुनिए प्लीज. नहीं सीधा प्रोविजन नहीं, सीधा नंबर बोलिए. प्रोविजन जिधर जरूरत पड़ेगा बोलेंगे. हाँ ये बोल रहे हैं पूरा 60,000 रिकॉग्नाइज कर दो. कौन सा प्रोविजन? बायर डिले ड्यू टू रिक्वेस्ट फ्रॉम बायर तो नेबर. रेवेन्यू ऑफ 1,20,000 बोल रहे हैं. कैसा है? 1,50,000 का 80%, दैट इज 1,20,000. 20% तो स्टॉक में है ना, तो 20% स्टॉक में है तो 80% का माल बिक गया. नहीं बर वो बोल रहे पूरा 1,20,000 रिकॉग्नाइज कर दो, क्योंकि 3 महीने का पीरियड था ना. कभी खत्म होएगा 3 महीना? 1 मार्च. तो तभी तक तो अप्रूवल आया नहीं, तो सब कुछ रिकॉग्नाइज हो जाएगा. चलो नेक्स्ट पर्सन. 7,41,000 है. 7,80,000 माइनस, तो ये बोलते हैं 7,41,000 हो गया. बराबर ना. अभी इसके जगह पे ये 5% कैश डिस्काउंट होता तो क्या करते थे? तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करते थे? 780 का करते थे. बराबर है. अच्छा उसके बाद क्या करने का? तीनों चारों का ऐड कर देने का. आई होप यू क्लियर ऑन इट. चलो परफेक्ट है. गुड. हाँ बोलिए क्या हो गया? 780 के बाजू में नेक्स्ट लिखा, मतलब क्या? ऑलरेडी माइनस हो गया है तो थोड़ी माइनस करेगा, तो नहीं करेगा. हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. नाइन्थ प्रॉब्लम. A Limited has sold its building for 50 lakh to B Limited, has also given possession to B Limited. The book value of the building is 30 lakh. As on 31st March 17, the documentation and legal formalities are pending. The company has not recorded sale and has shown the amount received as advance. Do you agree with this treatment? 1 मिनट का टाइम है. आप नहीं बोलने वाले तो मैं पूछेगा. अभी मुझे प्रोविजन के साथ चाहिए. ओके टाइम आउट. हाँ बोलिए. किसको टर्न नहीं मिला है? जवाब देना है, बोलिए. नहीं तो मैं पूछूंगा. अच्छा नोबडी रेडी, तो विल आस्क. चलो यहां से पूछते हैं. हाँ सेकंड ला. हाँ हाँ सुनिए प्लीज. शी इज सेइंग.
हाँ सुनिए, शी सेइंग रेवेन्यू करके रिकॉग्नाइज करेंगे 30 लाख रुपया। हाँ, किसको प्लस माइनस करना है तो प्लस माइनस का बात करने का, इधर से किसको प्लस माइनस नहीं करना है। इधर आपको तो टर्न मिल गया, और कोई जिसको टर्न नहीं मिला भाई, who didn't get a turn, प्लस माइनस। हाँ हाँ सुनिए, पहला इज डूइंग सम प्लस माइनस। अच्छा, ई सेइंग मेरा उल्टा आंसर है। वो बोलता रिटर्न सेल्स डीड नहीं बना है, तो ऑब्वियसली इसलिए हम से रेवेन्यू करके रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। हाँ, उनको कुछ प्लस माइनस करना है। So she is saying I will assume that the return deed is done. On the assumption return deed is done, I will recognize it as revenue. बोले उसके बिना तो पोजीशन नहीं देगा वो, ऐसा। ओके, एनीवे, और किसी को कुछ प्लस माइनस करना है? हाँ, ही सेइंग मेरा भी कुछ प्लस माइनस है। हाँ चलो फाइन, और किसको प्लस माइनस करना है? हाँ, जिसको टर्न मिला है उसको भी कुछ प्लस माइनस करना है तो बोल दो। हाँ अरे दिया ना 30 लाख रुपया, लिखा है ना 30 लाख दे दिया है, दिया है ना, पैसा दिया, बोला कि नहीं बोला है? नहीं बोला है। 30 लाख इज द 30 लाख इज व्हाट? बुक वैल्यू। ही सेइंग आई विल ऐड दैट बुक, पैसा मिल गया है। ओके हाँ हाँ, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन देयर इज कि सेल डीड बना है कि नहीं बना है। हाँ नहीं, आगे पढ़ो, हमने लिखा है कि नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ओके, कंक्लूजन 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 सुनिए बराबर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप लोग, सुनिए, वेरी नाइस। नाउ जहां तक प्रोविजन है, व्हाट शी सेड, प्रोविजन इज फाइन। नाउ एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन में नंबर 1, out of the 3 conditions, it's very clearly specified possession is given, very clearly specified possession is given, बराबर है। सेकेंड, is the payment made or not made? Made, amount नहीं बोला है but made है। कहां बोला है? यहां, shown the amount received as advance, so we will to assume पूरा 50 लाख मिल गया। सिंस एडवांस इज रिसीव्ड, तो विल एज्यूम कि पूरा का पूरा पैसा आ गया मेरा, तो दूसरा कंडीशन भी पूरा हो गया कि पैसा आ जाना चाहिए बायर से, या एग्री टू बी रिसीव्ड है, यहां तो आ गया पैसा, तो दूसरा कंडीशन भी पूरा हो गया। अब बचा तीसरा कंडीशन, द सेल डीड इज रिटर्न, द रिटर्न सेल्स डीड इज डन। अब यहां पर दे आर सेइंग द डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज आर पेंडिंग, तो आपको उधर एज्यूम करना पड़ेगा, if there is a return sales deed, then it should be recognized as revenue, irrespective of whether the registration is done or not. But if there is no return sales deed, then it should not be recognized. तो आपका क्लियर कट आंसर होगा, सिंस 2 कंडीशन पूरे कर दिए बहुत क्लियरली, तीसरे के बारे में कंफ्यूजन है, देन वी हैव टू डू इट। अभी यहां पर आप बोलोगे सर डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज आर पेंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी लार्ज टर्म, डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा टर्म हो गया, तो हम नोट डाल सकते हैं कि अगर सेल डीड बन गया है और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, फिर भी हम सेल रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अच्छा, सेल डीड बना ही नहीं, देन तो नॉट पॉसिबल।
आर यू क्लियर ऑन इट? क्लियर ऑन नो? हाँ, कैसा लिखा आंसर? हम रीड कर ले सर, अपना भी थिंकिंग एंड आईसीआई का थिंकिंग मैच हो रहा है नहीं हो रहा है? बस हम बात रीड तो नहीं कर रहे, हम तो अपना ही सोच रहे, प्रोविजन अप्लाई कर रहे हैं. क्या लिखा है? एज पर AS9 अ बिल्डर कैन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इररेस्पेक्टिव ऑफ लीगल, वर्ड देखो, इररेस्पेक्टिव ऑफ लीगल रजिस्ट्रेशन if possession transferred. In this case, possession is transferred to be limited, consideration received or agreed to receive. In this case, amount has been received. This condition. हमने प्रोविजन लिखा, फिर कंपेयर कर रहे हैं, वो साथ में ही कर रहे हैं. थर्ड, रिटर्न सेल्स डीड. In this case, we are not clearly given whether the return sales deed has been executed or not. In case the sales deed is executed, revenue can be recognized irrespective of legal registration. However, in case the sales deed is not executed, clear on it? So don't fight on the ground documentation and legal formality. That's a very wide term. So you can make it simple. कि सिंपल सेल्स डीड है रिटर्न तो भी चलेगा. आर यू क्लियर ऑन इट? उसमें स्टैम्प ड्यूटी भरा नहीं भरा, रजिस्ट्रेशन भरा नहीं भरा, ऑल दोज इज डिफरेंट. हाँ बोलिए, कुछ डाउट है उधर? अभी यहां पर हम राइट रॉन्ग नहीं बोल सकते है ना, इधर और में है ना, हुआ तो रेवेन्यू, नहीं हुआ तो नॉट रेवेन्यू. तो इसलिए उसने जो किया है वो गलत होगा अगर पहला होगा, दूसरा केस होगा तो नहीं होगा. इसलिए हम उसको गलत नहीं बोल रहे, हम बोल रहे ये राइट, ऐसा किया तो रेवेन्यू है, ऐसा नहीं किया तो रेवेन्यू नहीं है. नो नीड, यू कैन देन स्किप इट ऑफ. वेर यू आर वेरी वेरी क्लियर दे हैव डन रॉन्ग, देन यू हैव टू मेंशन इट. हियर देयर इज अ डाइजी सिचुएशन, सो वी आर ऑफ फ्रॉम दैट कमेंट. हाँ बोलिए, क्लियर ऑन दिस? समझ में आ रहा है? किसी को डाउट? हाँ, मैं वही बोल रहा हूं, यहां पर 30 लाख को एडवांस, जो भी 50 लाख को एडवांस ट्रीट करना गलत है, ये बोलने का जरूरत नहीं है, बिकॉज हम अपना आंसर में ही इफ एंड बट में आंसर कर रहे हैं. तो मतलब ऐसा हो गया ना, हम उसको बोल रहे हैं देखो ये तुम्हारा क्लाइंट के साथ हो रहा है, तो तुम क्लाइंट को पूछ रहे हैं कि तेरा पेपर है क्या नहीं, तेरा सेल डीड है क्या नहीं. बोला मालूम नहीं, पूछ के बताता हूं. तो बोलते पूछ के बताता हूं, तो काम बोलेगा उसको तो गलत है. समझे ना? तुम्हारे, आप चार्टर्ड का, आप ट्रेन आर्टिकलशिप में है, और आपका जो क्लाइंट है उसका अकाउंटेंट आपसे बात करता है, बिकॉज आपका क्लाइंट तो बहुत बड़ा आदमी होगा. तो अकाउंटेंट फोन कर रहा है और बोल रहा है जरा डेटा बताऊं. तो अकाउंट बोले मालूम नहीं सेल डीड है क्या नहीं, मैं सेठ को पूछ के बताता है. तो सेठ को पूछ के बताता है ऐसा बोल रहा है, तो थोड़ी बोलेगा तेरा सेठ ने गलत कर दिया. तो उसको बोला देख, अगर है तो अपने को रेवेन्यू करना पड़ेगा, नहीं है तो अपने को एडवांस दिखाना पड़ेगा, ऐसा बोल के छोड़ देंगे. फिर वो जब भी कंफर्म करेगा तो हम बोलेगा तू गलत है तो सही है. आप प्रैक्टिकल सोचो तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा. आर वी कम्युनिकेटिंग? हेलो, वी टू ब्रिंग द फ्लेवर ऑफ आर्टिकलशिप का प्रैक्टिकलिटी, तो आपका आंसर्स बहुत प्रिसाइज हो जाएंगे. गेटिंग? अभी आप बोलो मैं तो आर्टिकलशिप किया ही नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं करना है. यू गेट द फील ऑफ इट. थोड़ी आप सीए हो जाएगा और कोई हॉस्पिटल का ऑडिट आएगा तो बोलेगा अभी हॉस्पिटल का तो मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को अभी 1 महीना हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा. फिर कोई एयरक्राफ्ट वाला आएगा, बोइंग वाला, बोले अभी रुको 1 महीना बोइंग में रहेगा. तो ऐसा 5000 इंडस्ट्री है तो 5000 महीना है तुम्हारे पास, उसमें तो 4 जन्म हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है? तो ये सब स्टोरी मत करो, थोड़ा हाइपोथेटिकल रहना पड़ता है. ठीक है, चलो.